नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हो सियासत.com। हम आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, 14वां रिश्तों का दूबदू प्रोग्राम इदारे सियासत और MDF की जानिब से इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 36 शादियां तय हुए और 14वां रिश्तों के दूबदू प्रोग्राम में 920 लड़कियों के और 290 लड़कों के नए रजिस्ट्रेशन हुए, जहां वालिदीन की कसीर तादाद को आप इस वीडियो में देख सकते हो। नाज़रीन, इदारे सियासत और MDF के ज़ेर एहतमाम रिश्तों के दूबदू प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक़िदा प्रोग्राम के मौके पर आली जनाब जाहिद अली खान साहब, एडिटर सियासत, इस प्रोग्राम में खुसूसी खिताब किया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। मौजूद हाज़रीन, ख्यालात का इजहार तो गुज़िश्ता 3-4 साल से हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि उस पर अमल कितना हो रहा है। ये जलसा हम इसलिए इस महल्ले में रखे हैं कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खिले गोलकुंडा में गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें 8 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू नौजवानों से शादी कर दी। क्या वजह है? ये जहेज की लानत है, घोड़े जोड़े की रस्म है और बड़े बड़े शादी खानों में शादियों का एहतमाम करने की बात है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, अलबत्ता एक बहुत ही गरीब लड़की की शादी गुज़िश्ता महीने जब मैं
عمرے پر تھا، حیدرآباد میں ہوئی تھی، اور افسوس کی بات ہے کہ اس غریب لڑکی سے 1 لاکھ روپے گھوڑے کے لیے ایک پلسر کا مطالبہ اور اچھے شادی خانے میں اچھے لوازمات کی شادی کرنے کا جو مطالبہ تھا، میں نے بادلہ ناخواستہ اس کو قبول کیا اور اس شادی کا اہتمام کروا دیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حیدرآباد میں کتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں جو ایسے موقعوں پر آگے چل کر ان غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ بازو کے 2 شادی خانوں کو بیچ کی دیوار گرا کر اتنا بڑا اہتمام، 4-5 ہزار لوگوں کی دعوت، 20-25 لوازمات کے ساتھ شادی کرنا، کیونکہ جہیز کا وہاں پر کی نمائش نہیں ہوتی، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہیز بھی چپکے سے دے کر وہ شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ اس طرح شادیوں سے آپ کا سماجی موقف کچھ بڑھ سکتا ہے؟ اگر ہم ایسی شادیوں میں جانا بند کر دیں تو یقیناً اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر 4 شادیوں کی آپ کو دعوت آتی ہے تو اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ کس جگہ کی شاید شادی معیاری ہوگی، کس جگہ کا کھانا اچھا ہوگا، کس جگہ ناچ گانے کا پروگرام ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں عامت المسلمین کو زیب نہیں دیتی۔ ہم دنیا میں دوسری بڑی آبادی ہے، مسلمان دنیا کی سب سے دوسری بڑی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود تعلیمی، معاشی، سماجی اعتبار سے ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس پر ہم کو غور کریں تو یقیناً ہم اس بات کے طرف جائیں گے کہ ہم کو شادی کو آسان بنانا چاہیے، اور سیاست کی یہ کوشش ہے کہ کس طرح سے مائنارٹی فورم ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی آسان بنائی جائے تاکہ ہم معاشی طور پر اور سماجی طور پر اور تعلیمی طور پر اپنی زندگیوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یقیناً 50-60 سالوں میں ہم دنیا کی سب سے بڑی آبادی بن جائیں گے، مگر یہ خرافات کی وجہ سے جو ہم معاشی پریشانیوں کے ساتھ اچھی تعلیم بچوں کو نہیں دلانے کی وجہ سے اگر پڑھتے ہیں تو دنیا ہم پر یہی الزام عائد کرے گی کہ یہ معاشی طور پر پریشان، سماجی طور پر پریشان اور تعلیم سے دور قوم دنیا کی سب سے بڑی آبادی بنی۔ اگر ہم صرف اور صرف شادیوں کو آسان بنا کر اپنے قدم آگے بڑھائیں گے تو دنیا میں بہت بڑا مقام ہمارا پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سیاست میں مائنارٹی ڈیولپمنٹ کے تھرو اس بات کی کوشش میں لگے ہیں کہ کس طرح ہم شادی کو آسان سے آسان بنائیں، جہیز کے مطالبے کو ختم کریں، جوڑے کی رقم ہم لینا بند کر دیں، تو یقیناً ہم اپنا اچھا جو مقام آج سے 60 سال 70 سال پہلے ہمارا تھا وہ ہم مقام پھر دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بات کو سوچتے ہیں کہ ہم نے اس ملک پر 800 برس حکومت کی، بہت اچھا دور تھا ہمارا، بہت کامیاب ہماری زندگی تھی، ہم بڑے بڑے محلات کے مالک تھے، بڑے بڑے جاگیرات ہمارے نام پر تھے، لیکن کبھی ہم نے ان 60 سالوں میں جو مسلمانوں کی حالت بنی ہے کیا ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ ہم اس پر غور نہیں کر رہے۔ ہم تعلیم میں پیچھے ہو گئے، محلات ختم ہو گئے، جاگیرات ختم ہو گئے سارے۔ آج اس کے باوجود بھی شادیوں کا جو اہتمام ہو رہا ہے شہر میں، وہ دیکھ کر اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی شادیاں
आखिर हम करते रहेंगे तो गरीब शादी कैसा करेगा? और गरीब के साथ साथ सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का आदमी बहुत परेशान है, इसलिए ना वो अमीरों की तकलीफ कर सकता है ना गरीब की तकलीफ कर सकता है। गरीब मस्जिद में कर लेगा शादी, गरीब अपने घर के सामने डेरा डाल के शादी कर लेगा, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है आज सबसे ज्यादा परेशान है। और ये जो एहतमाम हो रहा है, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और आज जितने लोग यहाँ जमा हैं उनके रिश्ते आज तय हों, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी है और हम दुनिया में सुरखरू होने के लिए अपनी पहल की तरफ ये पहला कदम होगा। मैं ये चाहता हूँ आज कि जितने भी बेटे वाले यहाँ मौजूद हैं वो इस बात का अहद करके उठें कि वो जहेज नहीं देंगे, और बेटी वाले की तय करके निकलेंगे कि हम जहेज मांगने वाले को अपनी बेटी नहीं देंगे। ये दो चीज का हम अहद करते हैं तो यकीनन जो सियासत चाहता है, जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट चाहता है, जो आज स्टेज पर इतने लोग बैठे हैं, ये सब चाहते हैं कि अगर इस तरह का अमल हो तो इंशाअल्लाह हम माशी एतबार से, तालीमी एतबार से और समाजी एतबार से दुनिया की मकबूल तरीन कौम बन सकते हैं। हम जलील बन के दुनिया की सबसे बड़ी कौम बनना नहीं चाहेंगे, हमको उसकी जरूरत नहीं है, उससे तो यही हाल हमारा बेहतर है। लेकिन अपने हाल को सुधारने के लिए हमको इन 3 मौकों का फायदा उठाते हुए तालीम के लिए अपनी बहुत ही तवज्जो देने, वरना मुसलमान का यह हाल है कि एक शख्स कमाता है, घर में 10 आदमी खाने के लिए रहते हैं। मैं तो ये भी चाहता हूं कि हमारी बेटियां घर बैठकर टेलीविजन देखने के बदल कुछ दस्तकारी के प्रोग्राम को शुरू करें। आज सियासत की जानिब से जो काम हो रहा है, फूलों की तैयारी, मेहंदी डिजाइनिंग, ये सब चीजें हम सीख कर घर में पर्दे में रहकर, अपने बुर्के में, अपने नकाब में रहकर इस बात की कोशिश करें कि अपने जरिए आमदनी को बढ़ाएं। इसलिए कि एक कमाए और 10 खाए तो जिंदगी भर ये कौम सुरखरू नहीं हो सकती। इसको हर घर के फर्द को लिए ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी न किसी तरह घर बैठकर भी कमाने के काबिल बने। इसलिए कई प्रोग्राम्स हम शुरू किए हैं जिसकी तफसीलात आपको माइनॉरिटी डेवलपमेंट दे सकती है कि वो प्रोग्राम भी आप अपने लोगों को घर में सिखाइए और उनको इस काबिल बनाइए कि बेकार टेलीविजन देखकर, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों की तालीम भी खराब हो रही है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसकी नज़ीर कोई दे नहीं सकता, जिसकी वजह से आज समाज में बिगाड़ आ रहा है। इस बिगाड़ को दूर करने के लिए अच्छे प्रोग्राम देखिए। आप खाना पकाने के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो देखिए, मजहबी प्रोग्राम्स देखिए, लेकिन ये प्रोग्राम्स मत देखिए जिसमें माँ बाप से झगड़ा, बहू का सास का झगड़ा, ये जो इनकलाब आ रहा है कौम में। आज गोलकुंडे में जो हमारे मुस्लिम बच्चियां जो गैर हिंदू मुसलमानों के साथ जाकर वहाँ तफरीह कर रही है, उनको रोकने के लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लोग वहाँ पहुँचकर उनको सख्त से सख्त सजाएं दी है और उनके वालिदैन को इस बात की इत्तला की है कि आपकी लड़की आज फलां के साथ गोलकुंडा में तफरीह कर रही है। तो ये चीज़ का ख्याल रखने के लिए ये काम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम आप सबकी के ताउन के बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए हम इस प्रोग्राम के साथ साथ इन तकरीरों का कभी यहाँ पर प्रोग्राम रखे हैं ताकि समाज को ये से वो कोई वाकिफ कराएं तो किस तरह आज अपनी ज़िंदगी को संवारने के मौके से फ़ायदा उठाते हैं। मैं शादी खाने के मालिकीन से भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज फ्री ये हॉल दिया है कि यहाँ पर इस मुकाम पर जहाँ पर मुसलमानों की बेशुमार आबादी है उस इलाके में भी ये होना चाहिए, वरना अनवर उलूम कॉलेज में इतना वसी इलाका है कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ जमा किया जा सकता है। लेकिन अब हमारा ये प्रोग्राम है कि हम हर दो प्रोग्राम कोई एक महल्ले में करेंगे ताकि वहाँ के महल्ले के लोग वहाँ उसका फायदा उठा सकें। कल ही मैं कोल्हापुर
महबूब नगर, नागर कर्नूल का दौरा किया। वहाँ भी लोग चाहते हैं कि दुबदू का ये प्रोग्राम उन इलाकों में भी हो जहाँ जो बिछड़े हुए इलाके हैं, जहाँ पर कोई पुरसाने हाल भी नहीं है, तो वहाँ पर भी इसका एहतमाम किया जाए। इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम को अजला के लेवल पर भी लेके जाएंगे ताकि वहाँ के मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस प्रोग्राम को वुसअत दे और उसको कामयाबी अता करे। खुदा हाफ़िज़।